So we continue with today's topic that we have to establish today about the convergence of a very important series. This is very important series, and that whenever you have a series whose nth term is of the form 1 upon n to power p, we have to talk about this. And this theorem says that whenever p is strictly greater than 1, then the series is convergent. And it has been mentioned that only for p greater than 1 it is convergent. That means for p less than or equal to 1, the series is not convergent, series is divergent. So let us first try to check uh, the convergence when p is greater than 1. तो फर्स्ट पहले हम ले लेते हैं कि जब जो आपके पास ग्रेटर देन 1 है, देन वी हैव टू एस्टेब्लिश कि आपकी जो सीरीज है, ये पी सीरीज बोला जाता है जी इसको, तो ये कन्वर्जेंट है। तो अगेन वही कन्वर्जेंट शो करने के लिए हमें क्या शो करना है कि इसकी जो पार्शियल सम्स हैं, पार्शियल सम्स की सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास अगर आप नोटिस करें तो आपके पास ये जो सीरीज है, जो आपके पास xn है 1/n to power p, this is a positive number. So in case of when you have positive terms, so to establish then that the series is convergent, it is equivalent to establish that the sequence of partial sums is bounded as seen yesterday's theorem. So that means we have to only establish that इसके जो partial sums की sequence है, क्योंकि positive terms की वजह से वो आपके पास convergent बनती है, तो convergent increasing बनती है। तो इंक्रीजिंग होने की वजह से वी हैव टू जस्ट एस्टेब्लिश दैट कि आपके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो बाउंडेड होने से क्या हो जाएगा, बाउंडेड होने से मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हम अप्लाई कर पाएंगे, तो उससे आपकी एसएन कन्वर्जेंट होगी। लेकिन हम एसएन को भी बाउंडेड नहीं शो करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू शो, वी आर गोइंग टू गेट अ सबसीक्वेंस ऑफ एसएन, वी आर गोइंग टू गेट अ सबसीक्वेंस ऑफ एसएन, एसएन की एक सबसीक्वेंस हम लेंगे और उस सबसीक्वेंस को कन्वर्जेंट बाउंडेड शो करेंगे। तो द क्वेश्चन इज नाउ के अगर सबसीक्वेंस बाउंडेड है तो सीक्वेंस कैसे बाउंडेड होती है। लेट मी फर्स्ट गिव यू टेल यू अबाउट दिस। So what we have Sn, which is an increasing, and we have to show that a subsequence of it is bounded. Subsequence of it is bounded, and that will imply this will imply that Sn is bounded. Sn is bounded. How it will imply that Sn is bounded? Why? Because let us take a subsequence. Let Snk be a subsequence of Sn which is bounded. That is S, ये पॉजिटिव टर्म्स हैं तो सो आई मे राइट विदाउट एनी बाउंड मॉडुलस लिखने के बजाय आज आई मे राइट इट टू बी लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल nk. Now for any n, there exists some nk such that n is less than nk. Why it is so? Why? Because आपके पास जो ये nks की sequence है, n1 is strictly less than n2 is strictly less than n3 is strictly less than n4, so on. तो ये nks की जो sequence है, this is a strictly increasing and unbounded sequence. This is an unbounded. Because of unboundedness, तो कोई भी आप natural number n ले लोगे, you will get a nk which is larger than that natural number. तो उससे क्या हो जाएगा, n greater than or equal to nk greater than or equal to n होने से आपके पास
Sn जो होगा Sn will be less than or equal to Snk because Sn is an increasing sequence and Snk is less than or equal to m. So this follows that आपके पास Sn is less than or equal to m. That means Sn is also a bounded sequence. तो दिस वे हमें ये वहां पर टेक्निक प्रूफ करनी है कि हमें पी सीरीज को प्रूफ करना है कि पी सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है. तो टू शो दैट पी सीरीज इज कन्वर्जेंट, what we have to show a subsequence of its partial sums is a bounded sequence that will establish that the P series is a convergent. So let us now begin that. सर हेलो हाँ जी बोलो. सर एसएन अगर बाउंडेड है और वो इंक्रीजिंग है तो सीधे मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम से नहीं हम कह सकते कि वो बाउंडेड नहीं, वो तो कन्वर्जेंट हो जाएगी ना. है. यस वो तो सर. फिर वही तो हम एक्चुअल में हमें वही प्रूफ करना है. We have to establish that Sn is convergent. तो इसको कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमें Sn को इंक्रीजिंग प्रूव करना है. लेकिन इंक्रीजिंग ये ऑलरेडी है क्योंकि आपके पास पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, तो हम इसको बाउंडेड भी शो करेंगे. इंक्रीजिंग तो बाय डिफॉल्ट है, हम इसको बाउंडेड शो करेंगे. तो अब Sn को पूरे को बाउंडेड हम शो नहीं करेंगे. तो इंक्रीजिंग में क्या होता है कि आप इसकी एक सब सीक्वेंस को बाउंडेड शो करो. सब सीक्वेंस ऑफ Sn को बाउंडेड शो करो. तो सब सीक्वेंस ऑफ Sn बाउंडेड हो जाएगी तो Sn भी बाउंडेड हो जाएगी. तो फिर हम कहेंगे कि Sn इज बाउंडेड एट इंक्रीजिंग एंड बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इट इज कन्वर्जेंट. और वही हमें चाहिए भी कन्वर्जेंस. इज इट ओके? यस सर. Okay, so let us try to do this thing. Now we have what we have to do. We have to construct a subsequence of partial sums of this P series, which is a bounded sequence. So let us what we are going to choose. K1 को चूज करेंगे हम. K1 हमने चूज करा है 2 to power 1 minus 1, जो आपके पास 1 आ जाता है. तो SK1 आपके पास क्या आ जाएगा? SK1 आ जाएगा 1. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आती है क्योंकि n equals to 1 to p है. तो 1 to power p is always 1. ठीक है. K2 चूज कर रहे हैं हम 2 to power 2 minus 1. 2 to power 2 minus 1 आपके पास 3 आ गया. तो दैट मीन्स SK2 is nothing but इस सीरीज की तीसरी टर्म होनी चाहिए वो. तो तीसरी टर्म इस सीरीज की क्या? पहली टर्म है इसकी 1, फिर है 2 टू पावर p, फिर है 1/3 टू पावर p प्लस 1/4 टू पावर p प्लस 1/5 टू पावर p प्लस so on. We have these things. Okay. तो K3 आपके पास K2 आपके पास 3 आता है. तो दैट मीन दिस इज SK3. SK1 आपके पास ये टर्म है. ठीक है. फिर आप SK3 के बाद SK2 हो गया. SK2 आपने चूज किया. बट अब SK2 को हम क्या करेंगे? SK2 आपके पास सॉरी SK3 मतलब आपके पास पार्शियल सम है ना. ये पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है. तो इट हैज टू बी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आ गया ये. तो अब पहले इसका कोई एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं. लुक एट दिस. 1 plus 2 upon p plus 1 upon 3p. I can write it to be less than because आपके पास 2 to power p जो है 2 to power p is less than 3 to power p. तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? 1/3 to power p will be less than 1/2 to power p. तो यहाँ पर ये 1/3 to power p can be replaced by 1/2 to power p. तो अब इन दोनों को ऐड करो. आपके पास 1 plus 1/2 to power p minus 1 बन जाएगा. तो SK2 is bounded by this term. नाउ K3 को हम क्या चूज करेंगे? K3 को हम चूज करेंगे 2 to power 3 minus 1. तो 2 to power 3 minus 1 7 आ जाता है. तो दिस इज दैट मीन्स SK3 जो होगा वो पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हो जाएगा. तो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम ये आ गया. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें ये आप इनइक्वालिटी नोट कीजिएगा कि 4 पावर p लेस देन होगा 5 पावर p लेस देन होगा फ्रॉम 6 पावर p लेस देन will be from 7 power p.
So now SK3 is 1 plus 1 upon 2p plus ये आपकी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम आ गया। तो फर्स्ट 3 टर्म्स जो है, फर्स्ट 3 टर्म्स हमने नोटिस किया कि ये SK2 है प्लस बाकी की टर्म्स एज इट इज रखिएगा, लेकिन फिर ये इनइक्वालिटी ऊपर देखेगा 4/p इज लेस देन फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स। तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो 1/4/p इन सब से बड़ा हो जाएगा। तो 1/5/p भी रिप्लेस करेंगे हम 1/4/p से, इसको भी रिप्लेस करेंगे 1/6 पावर p को 1/4p से, 1/7p को भी रिप्लेस करेंगे 1/4p से, लेस देन हो जाएगा। तो ये अब इनको ऐड कर लो। SK2 का हमने एस बाउंड निकाला है पीछे के, SK2 इज आपके पास ये यहाँ पर है, इज लेस देन 1 प्लस 1/2 पावर p माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 पावर p माइनस 1 प्लस ये 1/4p जो है 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इट विल बी 4/4 पावर p। तो 4/4 पावर p हो जाएगा 1/4 पावर p माइनस 1। तो ये आपके पास एस्टिमेट आ गया SK3 का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, R को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिएगा R कहाँ से, यहाँ से देखिएगा, इस ये आ गया 1 प्लस 1/2 टू पावर p माइनस 1। तो 4 पावर p माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन लेट अस चूज R टू बी अ नंबर which is 1/2 टू पावर p माइनस 1। तो p ग्रेटर देन 1 चूज कर रहे हैं जी, ध्यान रहे आपके पास p ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब 1/2 टू पावर p माइनस 1 जो है दिस इज एन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, समवन, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है 87। ओके, तो ये p ग्रेटर देन 1 होने की वजह से r का जो वैल्यू है r हैज टू बी समवेयर बिटवीन 0 एंड 1। ओके, ये इस तरीके के नंबर रख लेते हैं। नाउ यही ऊपर वाली टर्म्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं SK3, तो SK3 के बाद हमने SK4 चूज करना है, SK5 चूज करना है। तो अगर पैटर्न आप देखें तो पैटर्न अब क्लियर है कि KJ इज 2 टू पावर J माइनस 1। तो 2 टू पावर J माइनस 1 जब हम चूज करते हैं तो फिर हमारे पास ये सीक्वेंस का पैटर्न बन रहा है कि SKJ तो पॉजिटिव टर्म है, दिस इज लेस देन, यहाँ ऊपर बन रहा है आपके पास ये जो मैंने सर्कल किया है 1 प्लस आर। अगर आप ये 1/2 टू पावर p माइनस 1 रखते हैं तो ये बनता है 1 प्लस आर स्क्वायर बनता है। तो इस तरह से ये पैटर्न बनेगा आपके पास अगर आप इंडक्शन से कंटिन्यू करेंगे। यू विल हैव SKJ टू बी लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अप टू r टू पावर j माइनस 1। बट व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज अ पार्शियल सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने बिगनिंग में करी थी। दिस इज partial sum ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज में देखिए जो ये आर है, दिस इज अ कॉमन रेशो एंड कॉमन रेशो इज लेस देन 1। तो उस केस में आपके पास जो पार्शियल सम्स हैं, तो जो टोटल ज्योमेट्रिक सीरीज का जो टू पावर के इसका सम जो होता है दैट इज 1/1 माइनस आर। तो इसका मतलब बाकी सारे पार्शियल सम्स आपके पास इस ज्योमेट्रिक सीरीज के जो होंगे वो 1/1 माइनस आर से लेस होंगे। तो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द पार्शियल सम्स, इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/1 माइनस आर। तो दैट मीन्स आपके पास जो ये वाला पार्शियल सम बन रहा है SKJ, वट एवर जे यू चूज, दिस पार्शियल सम इज बाउंडेड बाय दिस नंबर 1/1 माइनस आर, और इस नंबर को हम रख रहे हैं m। तो हेंस व्हाट वी हैव SKJ लेस देन और इक्वल टू m, where j is anything, j can be anything, j1 2 so on up to. तो in this way we have finally been able कि आपके पास ये जो एक सब सीक्वेंस बन गई पार्शियल सम्स की, SKJ इज अ बाउंडेड सब सीक्वेंस ऑन P सीरीज। तो जब ये अब आपके पास जैसे रीजनिंग आप हम करते हैं, Sn इज इंक्रीजिंग, हेंस आपके पास इट फॉलोज दैट Sn इज बाउंडेड। तो Sn बाउंडेड है और इंक्रीजिंग है, तो इट फॉलोज दैट बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम
इट फॉलोज दैट Sn इज कन्वर्जेंट। Sn कन्वर्जेंट होने का मतलब है आपकी जो p सीरीज है 1/n⁴ p, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, बट नोट दैट यहाँ p हमने ग्रेटर देन 1 यूज किया है, एंड नोटिस ये p ग्रेटर देन 1 यूज हुआ है जी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर p ग्रेटर देन 1 का यूज हुआ है। अगर p ग्रेटर देन 1 ना हो तो आपका r 0 और 1 के बीच में नहीं होगा, r ग्रेटर देन 1 हो जाता अगर लेस देन 1। ठीक है, तो ये ट्रू। नाउ नेक्स्ट हम देख लेंगे जस्ट अ मिनट। Okay. Now the next part that we have to talk about, what जब आपके पास p जो है, p का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। 0 लेने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि 0 के लिए वो ऑब्वियसली वो डाइवर्जेंट ही होगा। तो इस केस में देखिएगा p इज नाउ लेस देन इक्वल टू 1, तो उस केस में आपके पास ये इनइक्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जी, क्योंकि जब पावर आपके पास लेस देन 1 हो जाती है तो n⁴p जो होगा, n⁴p विल बिकम लेस देन n। ये इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये इनइक्वालिटी सारा कुछ डिसाइड करेगी। तो n⁴p लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा, तो व्हाट देन इसका मतलब आपके पास जो रेसिप्रोकल होगा 1/n, this will implies that 1/n is less than 1/n⁴p, less than equal to 1/n⁴p। तो इस तरह से काइंड ऑफ कंपैरिजन हो रहा है। तो इसका बट अब 1/n क्या है, 1/n इज अ nth टर्म ऑफ दिस हार्मोनिक सीरीज, और इस हार्मोनिक सीरीज की इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि दिस इज अ डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब इसकी जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। अब वो कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, तो क्योंकि इसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग है, तो वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इंक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट नहीं है, दैट मीन्स वो बाउंडेड नहीं होनी चाहिए। तो इसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। अब अगर इसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, एक सेकेंड, व्हाई आई एम नॉट एबल टू रेज इट, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ इट इज क्लियर दैट कि आपके पास 1/n के जो पार्शियल सम्स हैं, पार्शियल सम्स जो हैं, दे आर नॉट बाउंडेड। ठीक है, तो लेट Sn be a partial sum jk from 1 to n 1/k। तो इसी तरह से 1/np का जो पार्शियल सम है, तो लेट Tn बी अ पार्शियल सम ऑफ 1/n समथिंग k from 1 to n k to power p। दिस इज अ पार्शियल सम ऑफ p सीरीज। नाउ आपके ऊपर हमने क्या प्रूफ किया, ऊपर हमने देखा क्योंकि p आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 है, तो सिंस आपके पास 1/k जो है, 1/k इज लेस देन और इक्वल टू 1/kp, तो इट फॉलोज दैट आपके पास जो Sn है, Sn इज लेस देन और इक्वल टू Tn। वी हैव दिस इनइक्वालिटी, बट नाउ नोट दैट एज ये जो Sn है sequence, this is the sequence of partial sums of harmonic series, this sequence is not bounded, this is unbounded। if this is unbounded, this implies that आपका Tn की Tn तो Sn से बड़ा है, तो Tn bounded नहीं हो सकता। this implies that Tn, this is the sequence of partial sums of the P series, is not bounded। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं हो सकता। तो दिस फॉलोज दैट द पार्शियल सम्स ऑफ दिस P series in this case where P is less than or equal to 1, it has to be less than or equal to also, less than or equal to 1, in this case partial sums are not convergent। if partial sums are not convergent, that will imply that the series is not convergent, series is divergent। is it okay? Yes, sir. any questions? सर 1/n हार्मोनिक कैसे आ गया, हार्मोनिक सीरीज कैसे है? इसको हम हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं, दिस इज नाउन एज अ हार्मोनिक सीरीज। यू जस्ट कीप इन माइंड दैट इसको, दिस सीरीज हमने इसको
इसको हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं, दिस इज नोन एज हार्मोनिक सीरीज, इसका नाम ऐसे दिया, इट इज समहाउ रिलेटेड टू हार्मोनिक मीन आल्सो, बट यू कैन कॉल इट एज अ हार्मोनिक सीरीज। और इसके ये डाइवर्जेंट क्यों है ये हमने प्रूफ किया हुआ, वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड दैट इट इज अ डाइवर्जेंट। सर इज इट ओके? हाँ जी, हाँ जी, सर अगर वन आशीष अपॉन से। एन डाइवर्जेंट है हम्म। तो पार्शियल सम कैसे नॉट बाउंडेड होगा? देखो, मान लो पार्शियल सम्स बाउंडेड है, मान लो ऐसे इसके पार्शियल सम्स बाउंडेड है, ये मालूम है आपको कि ये डाइवर्जेंट है, ये आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि दिस इज अ डाइवर्जेंट। नाउ यू वांट टू एस्टेब्लिश के इसके पार्शियल सम्स बाउंडेड क्यों नहीं है, ठीक है? तो सपोज इसके पार्शियल सम्स बाउंडेड है, तो पार्शियल सम्स क्या होगा, जैसे एस एन जो है, एस एन इज आपके पास 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन अप टू 1/n होगा, ठीक है? और एस एन प्लस वन क्या होगा, एस एन प्लस वन होगा एस एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एंड क्लियरली एस एन प्लस वन बाई एन जो है दिस इज ग्रेटर देन एस एन। तो इसका मतलब आपके पास ये पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है। इज इट ओके? इंक्रीजिंग है ना? यस सर। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग है, और आप क्या मान रहे हैं, आप ये भी मान रहे हैं कि पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बाउंडेड भी है, और आप ये भी मान रहे हैं कि ये बाउंडेड भी है। अब कोई सीक्वेंस जब बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग भी है तो वो सीक्वेंस क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। मोनोटोन कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो इसका मतलब आपके पास सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। यस सर। लेकिन सीरीज क्या है, सीरीज तो डाइवर्जेंट है, सीरीज डाइवर्जेंट है ना, एम आई राइट? सर तो सीरीज तो डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन बाउंडेड की मानी थी ये गलत है ना, तो इसका मतलब ये अनबाउंडेड है, दिस इज नॉट बाउंडेड, इसके सीक्वेंस जो है दिस इज नॉट बाउंडेड। इज इट ओके? सर। ओके, यस एनी सर। अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन था पीछे जो हाँ आपने जी, हाँ कराया। जी, हाँ जी, बोलो तो कौन सा? पीछे स्लाइड पीछे करना सर। एक सेकेंड। सर एक और पीछे। ओके, सर एक और। हाँ बोलो। हाँ सर इधर इससे इधर। पीछे, हाँ हाँ, सर अगर सब सीक्वेंस किसी सीक्वेंस का बाउंडेड है तो सीक्वेंस कैसे बाउंडेड होगा? किसी भी सीक्वेंस का नहीं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मैंने इससे पहले वो लिखा ना कि वहां वहां हमने यही तो प्रूफ किया कि इफ अ सबसीक्वेंस ऑफ अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस is bounded, then it is bounded, then the sequence is bounded। यही यही मैंने बिगनिंग में प्रूव किया। अगर आपको उसको थोड़ी क्लैरिटी कम हुई होगी, वो समझ नहीं आया होगा, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस में बिगनिंग में थोड़ी सी वो देख लेना 4-5 मिनट, उसमें मैंने यही यही चीज प्रूफ करी है कि जब आपके पास सीक्वेंस की सब सीक्वेंस, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस नहीं ले रहा हूं मैं कि आर्बिट्रेरी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस बाउंडेड होने से सीक्वेंस जरूरी नहीं बाउंडेड हो, बट इंक्रीजिंग सीक्वेंस की सब सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो जाती है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड हो जाती है। ठीक है? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी फॉलो होगा? हाँ, डिक्रीजिंग में भी होगा इंडीड। मैं अगर इसको और जनरल तरीके से लिखूं तो मैं इसको मोनोटोन लिख सकता हूं, ताकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में भी ऐसा ही होगा। थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? So if there is no question, we should stop then.